جی تب ہم بات کریں گے ویژن 2040 کی. ویژن 2040 ہے کہ یہ پہلے اپنے شوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں. کمانڈر سٹی ایک ایسا پروجیکٹ اور اس میں ریٹائرڈ کمانڈر محمد ذاکر صاحب کا ایک ایسا خواب جو خواب انہوں نے دیکھا ہے اپنے پاکستان کے مستقبل کے لیے, آنے والی یوتھ کے لیے. اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جہاں سب لوگ رہنا چاہتے ہیں. انفیکٹ میں بھی چاہتی ہوں کہ کاش مجھے بھی یہاں پہ گھر مل جائے. تو کمانڈر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کیسے ان کا ویژن 2040 ایجوکیشن کے اوپر اور کریکٹر بلڈنگ کے اوپر, اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرے گا. لیکن آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کریں گے جو کہ ہے اکنامک گروتھ. اب یہ ویژن 2040 اکنامک گروتھ پہ کیسے ہیلپ فل رہے گا, یہ بات ہم جانیں گے. کمانڈر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ کمانڈر صاحب؟ کمانڈر صاحب یہ آپ کے ویژن 2040 میں اکنامک گروتھ ایک بہت امپورٹنٹ آپ کا ایک پروگرام ہے. جی بہت اہم. تو یہ کیسے آپ نے ڈیزائن کیا ہے, کیسے پلان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, جب ہم نے اس ماڈل کو پلان کیا ویژن 2040 کے ماڈل کو, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ تو اس میں آ جائیں گے اور اس میں بس بھی جائیں گے, لیکن ان کو اکنامک پراسپیرٹی کی طرف ہم نے کیسے لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل ماڈیول بنایا کہ جو لوگ بھی کمانڈر سٹی میں آئیں گے ان کے نمبرز کو دیکھتے ہوئے ہم نے جاب کریٹ کرنی ہے, ہم نے بزنس میں ان کو گروم کرنا ہے, ہم نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے. اس لیے ہم نے ایک بڑا انڈسٹریل زون رکھا ہوا ہے کمانڈر سٹی میں. اسمال انڈسٹریز سے ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں اور گریجولی ہم لارج انڈسٹریز پہ جا رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم انڈسٹریز نہیں لگائیں گے تو جابس کہاں سے آئیں گی. ٹھیک ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سٹی ہے اس کا ہر ماڈل, اس وقت تو ہم نے کراچی سے سٹارٹ لیا ہے موٹر وے سے, لیکن پورے پاکستان میں جب ہم اس کو پھیلائیں گے تو ہر ماڈل سیلف سسٹینڈ ہونا چاہیے. سیلف سسٹینڈ کا مطلب ہے کہ وہ اپنا پیسہ خود جنریٹ کرے اور اس کو کسی ایکسٹرنل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے جو بھی ہم نے کمرشلز پلان کیے ہیں کمانڈر سٹی کے اندر, وہ اس طرح سے پلان کیے ہیں کہ وہ اتنا پیسہ جنریٹ کریں کہ ہم سبسڈی دے سکیں لوگوں کو. جس طرح آج جب مارکیٹ میں 40 روپے 45 روپے یونٹ بجلی ہے اور سب لوگ پریشان ہیں, ہم 25 روپے یونٹ دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے 2025 میں ہم 10 روپے یونٹ بجلی دے رہے ہیں اور کم کریں گے. ہماری ہر چیز, ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں گزرتے وقت ساتھ مہنگائی بڑھے گی. نہیں, کمانڈر سٹی میں گزرتے وقت کے ساتھ مہنگائی نے کم ہونا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سبسڈیز کو انکریز کریں گے, اور یہی ایک اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو کمفرٹ دینے کے لیے وہ ایسے وسائل جو ہے وہ بروئے کار لائے, ایسی انڈسٹریز لگائے, ایسے پروجیکٹس لے کے آئے جو انکم جنریٹ کریں تاکہ وہ لوگوں کو میکسیمم سبسڈی دے سکیں. ٹھیک ہے, تو ہم ہر چیز سستی کریں گے کمانڈر سٹی میں. 2025 تک جب یہ ماڈل لوگوں کے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے کمرشل وسائل سے اتنا پیسہ جنریٹ کر رہے ہوں گے کہ وہاں غریب کی زندگی سکون میں آ جائے گی. یہاں میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کمانڈر صاحب کہ آپ کا دعویٰ ہے کمانڈر سٹی میں رہنے والے جتنے بھی رہائشی ہیں اور جتنے بھی غریب ہیں ان کی نسلیں آگے غریب نہیں ہوں گی, تو وہ کیسے؟ دیکھیں, یہی تو اصل چیز ہے جو ہم وہاں کر رہے ہیں کہ وہاں جو بھی مزدور یا جو بھی غریب لوگ آ رہے ہیں, ہر گھر سے میں ایک بچے کو پک کر رہا ہوں. اور زندگی بدل دو یوتھ پروگرام ہم نے ریسنٹلی شروع کیا ہے جس کے 2 بیچ نکل چکے ہیں. ٹھیک ہے, تیسرا بیچ ابھی ہم نے, یہ مسلسل ان کی گرومنگ ہوتی رہے گی اور ہم ان کو بزنس مین بنا رہے ہیں. اور 5 سال میں ہر بچے کو ہم کروڑ پتی بنا رہے ہیں. ہر بچے کو, چاہے وہ مزدور کا بچہ ہے, چاہے وہ جو بھی وہاں کے رہائشی ہیں, ان کے ہر گھر سے ہم ایک بچہ پک کر رہے ہیں. کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ کمانڈر سٹی میں شفٹ ہوں وہ اگلے چند سالوں میں کروڑ پتی اور ارب پتی بن جائیں, تاکہ یہ اکنامکلی اگر یہ گرو کریں گے لوگ, ٹھیک ہے, تو پھر ہی ہم دنیا پہ چھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, خالی جیب ہاتھ میں کشکول لے کے ہم کبھی بھی قوم نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے قوم بننا ہے تو پھر ہمیں یہ اکنامکس وار ہے, یہ اکنامکس وار کا دور ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کنونشنل جنگیں ختم ہو گئی ہیں. اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو اکنامکلی تباہ کیا جاتا ہے. اس وقت وہ دور چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیوں نہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیں اکنامکلی کہ جب ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی سے بات کریں
तो हमारी टांगें ना कांपें। कांपे ना टांगे, अब ये जुमला ये ज़्यादा अच्छा लगता है, कांपे ना टांगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं एम्पावर कर रहा हूँ, मैं औरतों को एम्पावर कर रहा हूँ, मैं बच्चों को एम्पावर कर रहा हूँ। कमांडर सिटी के अंदर जो आ रहा है मैं उसको एम्पावर कर रहा हूँ। हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दोनों लेडीज़ के लिए अलग हैं, वुमेन एम्पावरमेंट मॉड्यूल्स अलग हैं। हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे के औरतों के बिजनेस सेट करते हैं। हम वहाँ पे अभी अपने ब्रांड लेके आ रहे हैं, हम कपड़ों का ब्रांड ला रहे हैं, हम पानी का ब्रांड ला रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे इसी साल काम शुरू कर रहे हैं। वहाँ एक तो जॉब मिलेगी, एक अच्छी चीज़ कॉम को मिलेगी। जब हम आउटलेट्स बनाएंगे पूरे पाकिस्तान में और अपने बिज़नेस को फैलाएंगे तो यकीनन खुशहाली आएगी। और इसी तर्ज पे अगर गवर्नमेंट काम करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल अगले चंद सालों में ये मुल्क जन्नत बन सकता है। अच्छा कमांडर साहब, आपने कहा कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, तकरीबन आधी आबादी तो हमारी ख़वातीन की है। फिर दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अगर आप उनका जायज़ा लें तो औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। बल्कि मैं कहूँगी उनसे एक कदम आगे निकलती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखें तरक्की मुमकिन नहीं है आजकल के इतने मुश्किल हालात में। अगर एक फ़र्द काम करेगा और 6-8 लोग खाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी वो वाला दौर है नहीं, आज 15-20 साल पहले। इसलिए हम ख़वातीन एम्पावरमेंट पे स्पेशल फोकस कर रहे हैं। एक तो मैंने बताया कि हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ख़वातीन को, हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं ताकि वो अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकें। और दूसरी तरफ हम एक IT सेंटर भी कायम कर रहे हैं जहाँ पे ख़वातीन और बच्चे कंप्यूटर पर बैठ के पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे और डॉलर्स कमाएंगे इंशाल्लाह। और ये इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह इसी साल 2022 के दिसंबर तक हम इसको फंक्शनल कर रहे हैं। और ये अभी कुछ चंद महीनों बाद जी इसी 22 के एंड में हम इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और फंक्शनल कर रहे हैं। और वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनर्स हम लेके आ रहे हैं जो प्रॉपर ट्रेन करेंगे वहाँ के ख़वातीन को, ताकि उनके पास जो स्पेयर टाइम है वो बजाय वो गपशप लगाने के या वेस्ट करने के गॉसिप्स करने के, वो एक जगह बैठें और तिजारत करें पूरी दुनिया के साथ। आजकल ऑनलाइन देखें, इंडिया बहुत आगे इसमें जा रहा है, बांग्लादेश तक बहुत आगे चला गया है इसमें। तो हम IT में बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न जो तरीक़ेकार है वो सारे हम कमांडर सिटी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम जितना खुशहाल लोगों को कर सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे अलग काम हो रहा है, IT सेंटर्स पे अलग काम हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे अलग काम हो रहा है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पे अलग काम हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स ओवरऑल इकोनॉमिकली हर शख्स को जो है वो ऊपर ले जाएंगे और एक बेहतरीन मुआशरा कायम होगा। बेशक, कोई डाउट नहीं है इस बात में। अच्छा कमार साहब, आपने बताया कि आप IT सेक्टर जो है वो स्पेशली वुमेन को एम्पावर करने के लेके आ रहे हैं, तो अगर कोई मेल आना चाहे इसमें तो ये आ सकते हैं, स्पेशली खास तौर पर प्रोग्राम सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है। अगर हम IT की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें टाइमिंग्स हम अलग अलग रख सकते हैं, ख़वातीन का अलग या मर्दों का अलग, लेकिन ये जो IT सेंटर हम बना रहे हैं ये तो सबके लिए है, ये तो सबके लिए है। ये बच्चे भी जो अपने फारिग वक्त में यहाँ पे अपने हॉलीडेज़ पे वो पैसा कमा सकते हैं आके, और एक प्रॉपर निज़ाम के तहत उनकी ट्रेनिंग होगी प्रॉपर। पहले उनका हम स्किल डेवलप करेंगे, उनको बिज़नेस सिखाएंगे और उसके बाद उनको मॉनिटर करेंगे और वो बिज़नेस करेंगे। तो ये सब के लिए है, जितने भी रेजिडेंट्स हैं कमांडर सिटी के, ये उन सब के लिए, उन सब के लिए। अच्छा, आप इंडस्ट्रियल जोन की बात कर रहे हैं कमांडर सिटी के, उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। देखिए, कंप्लीट इंडस्ट्रियल जोन जो है वो हर शहर में हम अपनी प्लान में हमने उसको इसलिए रखा है कि हम दुनिया की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देंगे, एक सेफ़ एनवायरनमेंट देंगे ताकि फॉरेनर्स यहाँ आके काम कर सकें, और फिर हम चाइना से, जापान से और मुख्तलिफ़ मुल्कों से इंडस्ट्रीज़ को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे लोग उनको काम मिले जो इस वक्त दुनिया में बिखरे हुए हैं एज ए सेकंड ग्रेड सिटीज़न। वो दूसरों मुल्कों में जाके काम करते हैं तो उनकी वो इज़्ज़त नहीं होती कभी भी, वो हमेशा सेकंड सिटीजन ही रहते हैं। जी बिल्कुल, हमेशा वो वही रहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि मुल्क में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं। तो हम थ्रू इंडस्ट्रियल जोन
इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे कि इंशाल्लाह बाय 2040 मैं नहीं समझता कि किसी पाकिस्तानी को ज़रूरत होगी कि वो मुल्क से बाहर जाके काम करे। हम इतनी जॉब्स इंशाल्लाह क्रिएट कर लेंगे। वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कमांडर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ कि मैं कैसे कमांडर सिटी के प्रोजेक्ट पे घर ले सकती हूँ? देखिए, क्योंकि कोई इतना भी ले बेहतरीन आपका कमांडर सिटी का प्रोजेक्ट है कि कोई भी चाहेगा। कौन, मैं कहूँगी कि कौन ऐसा शख्स होगा, मुझे कोई ढूंढ के दिखा दें, जो ऐसे सुनहरे अपने फ्यूचर में नहीं जाना चाहेगा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं संवारना चाहेगा। बहुत आसान है घर लेना। हम तो घर क्रेडिट पे देते हैं, हम घर पहले देते हैं, पैसे बाद में। अब 40 मंथ स्कीम ले सकती हैं, 40 महीनों में पेमेंट पे घर ले सकती हैं, और जितने में प्लॉट नहीं मिलता एक डेवलप्ड सोसाइटी में, उतने में हम घर देते हैं। हम 50 लाख में बंगला देते हैं, वो भी क्रेडिट पे। आपको 3.5 साल पे या 40 महीनों में पेमेंट करनी है। घर हम पहले दे देते हैं, ठीक है। इस तरह कोई नहीं करता, ठीक है। हम 120 गज का जो विला है वो इस वक्त तैयार 75 लाख का हम दे रहे हैं, लेकिन पेमेंट आपको 40 महीनों में करनी है। ऐसा कोई नहीं करता। 75 लाख भी आपने 40 महीनों वो में भी 40 महीनों में पेमेंट करनी है। विला पहले ले लेना है, लेकिन आप कम से कम 20 लाख किराया बचा रही हैं। एग्जैक्टली, आप फौरी शिफ्ट हो सकते हैं, आप फौरी शिफ्ट हो सकते हैं, आपको फौरन हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और इतने कम पैसों में, इतने सस्ते में कौन घर देता है आज के ज़माने में? कमांडर साहब, आप तो इस बहुत वक्त 350 से ज़्यादा फैमिलीज कमांडर सिटी में रह रही हैं, और सब क्रेडिट पे रह रहे हैं। क्या बात है अभी कमांडर साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो आपने कहा कि जितने भी लोग रिहायशी वहाँ पे रह रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं इस वक्त कमांडर सिटी में, आप इंडस्ट्रियल जोन की, IT सेक्टर की बात करी, आपने एजुकेशन की बात की, तो ये इन तमाम लोगों के लिए फ्री है या फिर ये इसमें कोई अलग से चार्जेस हैं, कुछ फीसेस हैं या कुछ एडमिशन फीसेस हैं? देखिए, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तमाम चीज़ें फ्री हैं। जो बेसिक फ़ी वो दे रहे हैं, 1500 रुपये से वो फ़ी स्टार्ट हो रही है, जैसे मैंने बताया था लास्ट प्रोग्राम में। तो उसके अंदर बच्चे की जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो सब फ्री हैं। इवन जो शाम के स्पोर्ट्स हैं उसमें भी हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे। बच्चों को तीरंदाजी सिखा रहे हैं, फोकस इंप्रूव करने के लिए। हॉर्स राइडिंग मस्ट है सारे बच्चों के लिए, ये स्कूल में स्विमिंग मस्ट है सारे बच्चों के लिए। उसके कोई इजाफी चार्जेस हम बच्चों से नहीं ले रहे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तो कितने चार्जेस होते हैं? नहीं, हमारे बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए फ्री हैं। हाँ, रेजिडेंट्स के लिए हमने नॉमिनल से चार्जेस रखे हैं, मतलब 1000 से 2000 रुपये महीना, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। उसमें आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, उसमें आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, तीरंदाजी कर सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी सहूलतें वहाँ पे हमने कायम की हैं। बेहतरीन गार्डन्स हैं, बेहतरीन वॉक करने की जगह हैं। एक समझ ले कि इस दुनिया पे एक जन्नत हम बना रहे हैं इंशाल्लाह 2025 में। ये बिल्कुल मॉडल एक ऐसा ख्वाब जिसके बारे में मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी सोचता होगा, या हर शख्स ऐसा एक घर चाहता है लेकिन कहीं मिलता नहीं है। तो कमांडर सिटी आपके लिए लेके आया है कि एक ऐसा घर जिसको हम कह सकते हैं कि दुनिया में ही एक जन्नत बना के दे रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर जाकिर साहब हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच। आपका एक बेहतरीन विजन है, विजन 2040, जिसमें हम सबकी दुआ है कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो और आपके ख्वाब की ताबीर हो। और ऐसे ही हमारे साथ आप शो पे बैठे हुए हों और बताएंगे जी आज 2040 मेरा कंप्लीट हो गया है। और ये जो मैंने बातें की थी, जो मैंने वादे किए थे, आप देख सकते हैं कि सब कंप्लीट है। हमारी दुआएं आपके साथ है कमांडर साहब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसके साथ ही एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक की जाने बढ़ते मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।